So we're back, week 6. पिछले हफ्ते we did the festival वाला, Diwali specific, and which was a lot of fun. थोड़ा सा different था, but yeah man, my week has been incredible. तुम्हारा week कैसा गया? It was good. Went well. Nice. Again, as you've read the title, our aim for this podcast specifically is to deep dive into the world of social media, right? Because हमारी generation specifically have seen or almost breathed in technology as quickly as we have grown up. So हम लोग के लिए it has become a very integral part, and for that reason I think उस पे बात करना हमेशा उस पे हमेशा एक नज़र रखना to a certain degree कि हम लोग उसे मिस यूज़ नहीं कर रहे हैं to a certain degree, and also उसका fair use हो रहा है. I think those are some of the topics that हमें already we should talk about every single day, because it's one of those things जो कि बहुत जल्दी out of reach चली जाती है आपके, and it evolves into something that really affects your personal life, and धीरे धीरे करके that personal life starts to get affected into your professional life, and then it starts to takes a toll physically and mentally both. Physically and mentally both, yeah. So उसी के लिए I think it's one of the things that we should always talk about, and that's what we're doing today. So as I said, last week हम लोग ने दिवाली के बारे में बात किया था, where थोड़ा सा हमने BuzzFeed quizzes लिए थे, and it was very different tone. I think हम लोग इस हफ्ते थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं टोन को. We're gonna go back to the roots of Versatile Vibe podcast, and we're gonna talk about certain things that I think are talked about enough on specifically on our platform like YouTube, but I think the way that it's portrayed, majority of the time people say कि भाई ये करो ये करो ये मत करो ये मत करो, and I think our podcast is a place where we just have an open dialogue about certain things, Right. So for us it's more about okay, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, but why, right? And I think that why is what is different for a lot of people. बहुत सारे लोगों के लिए social media becomes like a coping mechanism for a lot of things. बहुत सारे लोगों के लिए it becomes a place for entertainment, and बहुत सारे लोग उसको अच्छे से use करते हैं, बहुत सारे लोग उसको बहुत अच्छे से misuse भी करते हैं. Still there is a point when entertainment के तरफ ज़्यादा inclined है. बाकी for the plus points है, उसके जो advantages है वो बहुत लोग अभी तक explore किए नहीं है. For example? For example, I see the thing is you have your LinkedIn account. LinkedIn is also a social media, but it's on a professional way. So many people don't even bother to update their LinkedIn account, which is very important. And I've seen many people who are settled in some other job, and still they have not updated. It's still on the we are pursuing PGDA or pursuing MBA, pursuing any degree, but they don't try and upgrade it, because the thing is LinkedIn many people have ignored to a certain extent. But the way it has potential is much more. If you want to know more about it, you can always see my account. Plug बहुत करते तो. No, but I get the like, specifically people who are in like doing their masters, right? हम लोग ने भी अभी recently हमारी masters की थी, and what LinkedIn it's basically a social media platform for business professionals, right? So अगर if you are in that kind of field, I think it's a wonderful tool to use and to know how to use. And yeah, man, you've seen a lot of seminars on that as well. So I want you to shed some light on, since we are talking about LinkedIn, right? So how has LinkedIn helped you? Like, how do you properly use LinkedIn to a certain degree? I mean, obviously, like we're not like users of it like बहुत साल हो गए हैं, but there is success there, like हम लोग ने बहुत अच्छे से use किया है, and it has actually proved very well for us. So like for what reasons do you actually use LinkedIn, and then उसके बाद why do you think it has become the platform that it has become?
So LinkedIn majorly I use it for professionally building my brand as a whole, and there are many things which I like to put in. There are some content which I create, be it on branding, be it on HR, be it on some advertisements of a company. So these all give me more idea about things which is not explored or which I want to explore to a certain extent. So recently also when I was putting my post, so I've put up a video for Lamborghini Revoluto, wherein it was the perfect example for the branding part of it. So it is always better you put up some write-ups, put up some content which displays your work, which displays your knowledge. So in a way LinkedIn को ऐसे यूज़ करो कि तुम जो भी पढ़ रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसको तुम एक रिफ्लेक्ट करने के जरिया बनो LinkedIn को, which is a very good thing. It is a good revision also. You'll always need it whenever you feel कि यार ये पॉइंट मेरे को नहीं आ रहा है. You can always go back to account, check it कि अच्छा ये पॉइंट मैंने लिखा था तो why don't I explore on this. So basically you are using it to create a personal brand एक तरह से. Yeah, exactly. My aim is building a personal brand. The second is building content which many people have not seen or have not explored. So it is more like giving some knowledge about certain things, or taking some knowledge about certain things and showing it to people who really need to know it, or who really need to go through it once, just to bring an improvement, be it in their work, be it in their studies, be it anything. Okay. Well, talk about social media in general. Tech and technology specifically has sort of grown a lot in the last decade, I would say. Like even from 2000s, like this is, like specifically in India, हमारे लिए बहुत सारी. Take a period, no, when Nokia was introduced into the market, तभी से देखो. So how the phones have developed. पहले Nokia enter किया mobile phone का segment, and then फिर brands followed. Motorola आ गया, then back to back Samsung आया. So these all built on the customer base which Nokia had built, and they are offering something more competitive than Nokia. But as you all know, Nokia has always been a competitive player in that time. Now it's not so strong, but when it was introduced into the market, it has been a very strong player, and nobody could match its sale or customer base. So it was that time we didn't have so strong social media presence. But the news articles, or be it some magazine photos, which made it more successful. The branding part of it, I would say. I wanted to deep dive into like what are really the challenges that we are going to face specifically using social media. Like I remember watching show called movie it was a documentary, The Social Dilemma. Yeah, the documentary of Social Dilemma, which I want you to explain a little bit on that, because I think like last time that I heard about Social Dilemma was from you as well, and I liked your explanation. So I want you to give a little brief like why that is important specifically for our podcast today. See, the Social Dilemma was majorly focused on how the behavioral changes effect when you use social media. So it had certain themes in it. So one of it was the behavioral algorithm. So whenever you are scrolling through any feed, scrolling through any shorts or reels, anything, so there's a feedback loop which gets developed in your background. And when that feedback loop develops, there's a certain point wherein it shows content you don't leave that mobile or social media. It gives you a way wherein it will show you कि चलो अच्छा ये content अच्छा है, तो चलो हम लोग उसको वैसे will plan and put आगे. So whenever you scroll, तो you'll always see कि तुमको जो पसंद आ रहा है वही तुमको दिख रहा है, which in a way affects your mental health. Majorly, it develops an addiction to social media. And if you have seen the documentary, so the thing they have shown that whenever you're scrolling through an Instagram feed, so they build a artificial personality, wherein they will see what content you are watching, and on that it will understand your behavioral changes, then how you respond to the post, where you comment, where you like, which posts are more resonating with you, which you will share. So in a way, the social media or the social media handles
build your personality in a way that you become addicted to it, or the algorithms work in a way that you don't leave your phone at all. Yeah, I think more than that, like the addiction part, yes, it is because it's such so easy, right? Like it's just this. It's literally just this. Exactly, it's But just a swipe thing. yeah, but more than that, I think it just enhances what your personality is to a certain degree, because again, as you said, like जो चीज़ों पे आप like लाइक्स कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ों पे आप एक्चुअली फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है तो आप कितनी लंबा देख रहे हो उस वीडियो को, या फिर कौन से ऐसे जॉनरास हैं जहाँ पे लाइक वो चीज़ें आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, एंड देन दैट्स व्हाट इंस्टाग्राम सीज, एंड देन दैट्स व्हाट द एल्गोरिदम सीज, एंड दैट्स व्हाट लाइक ओके ही इज रिएक्टिंग दिस, सो इसको ये ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा पुश करता है, सो आई थिंक मोर देन the algorithm making us bad, there's enough blame on us as well, to the point where we are basically showing the algorithm, the platforms, like Exactly. this is how to hurt us. This is where you can get us, right? कि मैं ये देखता हूँ, अगर क्योंकि दुनिया में कंटेंट बहुत है, आपको कंटेंट हर चीज़ के लिए 50 चीज़ें मिल जाएंगी, एक बार उनको समझ में आ गया कि भाई तुम्हें ये पसंद है, तो वो वही दिखाते रहेंगे, और इतना कंटेंट है कि आप रुकोगे नहीं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट एडिक्टिव, एंड दैट्स व्हाई यू आर लाइक अरे यार ये नहीं देखा मैंने, अरे ये भी है क्या, अरे ये भी है क्या, एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग अगेन. तो आई काइंड ऑफ वांटेड टू like deep dive into that, कि since you have that addiction, like, and the thing is कि आप आज के ज़माने में छोड़ भी नहीं सकते हो, because it's become such a key and integral part of everyone's life. Specifically for me, I'm into social media, when both of us now are starting to create content, तो हम लोग का एक तरह से वो जॉब ही बन गया है कि Exactly. we have to stay up to date कि क्या चल रहा है. See, the thing is कैसे है ना कि समझो you'll always say कि चलो सोशल मीडिया वी आर कनेक्टेड, सब लोग कनेक्टेड है, बट बैकग्राउंड में क्या रहता है, तुम यू आर ओनली विजुअली कनेक्टेड ना, यू डोंट हैव ह्यूमन कनेक्शन देयर. दैट्स व्हाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि तुमको अगर ह्यूमन कनेक्शन ही नहीं है तो यू गो इनटू डिप्रेशन, तुमको एंजाइटी होता है. देयर आर पीपल हु हैव गॉन इनटू पिल्स भी उसके वजह से कि आइसोलेशन में है तो तुमको कोई है नहीं बात करने को, सिर्फ विजुअली तो है, ऑनलाइन कर रहे तुम बात. सो दैट समहाउ इज नॉट राइट, बिकॉज क्या है उसने तुमको डिपेंडेंट तो कर दिया, बट तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है या तुम्हारा जो फिजिकल फिटनेस है, दैट हैज बीन इफेक्टेड इन अ सर्टेन वे, बिकॉज व्हेन यू सिट लाइक अ काउच पोटैटो, चलो चलो स्क्रॉल करते जा रहे हम, कंटेंट आते जा रहा है. So that in a way hits your physical fitness. Second is the mental feeling, wherein you always feel कि अरे मैं कुछ isolation में हूँ, या मेरे को बहुत ऐसा single out करके रखा है किसने. So that is the biggest disadvantage which we'll see, and in today's generation it is very very strong. Yeah, I think हमारे generation में इतना इसीलिए है because like we have grown up with it, right? कि हम लोग जब literally हमारा frontal cortex develop हो रहा था, we literally made an impression of कि भाई ये चाहिए मुझे, like आज के ज़माने में देख, like 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के पास मोबाइल्स है, एंड हमेशा जब भी किसी को कोई इशू होता है कि लाइक जा भाई खेल ले, मोबाइल पे खेल ले, या फिर लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम लाइक आर जस्ट लिटरली इन दे मोबाइल फोन्स ऑल द टाइम. तो आई थिंक even as adults we struggle because I mean हमारे लिए तो बहुत थोड़ा सा ऐसे like skepticism आ जाता है उसमें कि like it's still a technology, तो हम ज़्यादातर ट्रस्ट नहीं करते, तो there is still a barrier there कि ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना. बट फॉर अ किड जो कि literally has grown up in this, उसके लिए तो like this has become a part of their life. So इसीलिए धीरे धीरे करके जब तक वो bad habits और bad coping mechanisms दिखने लगते हैं, तब तक it feels like you're already in the deep end, Then what is happening now? The current household scenario, I will tell you. बहुत घरों में there are people who give their phone कि चलो तू ले तू खेल, तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होएगा. हाँ. That is a very wrong thought process. हाँ. Though it is a bit controversial, I'll say, but still it's a wrong thought process. In a way, what happens? बच्चे का जो क्रिएटिविटी है या जो उसको एक्सप्लोर करना है वो करता नहीं है. फोन देंगे तो उसका क्रिएटिविटी इज कम्प्लीटली डेड, तुमको क्रिएटिविटी नहीं आता है उसमें. या तुम स्क्रीन देख रहे, आइदर यू विल प्ले सम गेम और यू विल शो सम टू ये अपना राइम्स वगैरह का वीडियो दिखा देंगे तुम, या नर्सरी राइम्स हो गया, या बीट ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज.
तो व्हाट हैपेंस इज कि वो लोग को जो एक्सप्लोर करना है ना अपना पोटेंशियल वो नहीं होता है. सो इन माई केस आई विल से आई हैव अ स्मॉल किड मेरे घर पे. सो व्हाट वी ट्राई एंड डू, हम उसको वी गिव हर अ पेपर कि यू स्क्रिबल उसके ऊपर. एंड व्हेन शी स्क्रिबल्स वी शो हर कि चलो ऐसे ऐसे डायग्राम है, ट्राई रेप्लिकेटिंग दिस कलर्स. एंड शी ट्राइज हर बेस्ट, शी एक्सप्लोर्स, विच इज समथिंग वेरी गुड बिकॉज वो एक्सप्लोर करते तो उनका क्रिएटिविटी अपने आप ग्रो होता है. देन वी हैव ऑल्सो टेकन अ स्मॉल स्टोरी बुक जिसमें फोटोज है एंड बहुत ऐसे शॉर्ट स्टोरीज है, हार्डली 3-4 लाइन्स का स्टोरीज बेस्ड ऑन 5 to 6 पेजेस. वो 5 पेजेस में पिक्चर इज ऑन हाईलाइट, ओनली अ सिंगल लाइनर. Since we were all very analog before technology, right, कि हम लोग को एक्चुअली हैंड राइटिंग इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो उस टाइम पे इट स्टिल वाज लाइक नेसेसरी टू अ सर्टेन डिग्री, राइट. बट आजकल के ज़माने में सिंस द टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन सो मच, लाइक ही हैज़ टेकन ओवर सो मच ऑफ आवर लाइव्स, कि वो सारे एनालॉग बिहेवियर पैटर्न्स पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव, बट अगेन एज आई सेड, लाइक देयर हैज़ टू बी अ मॉडरेशन विच यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट, Yeah, कि definitely. इतना अच्छे से इतना ज़्यादा यूज भी मत करो कि यू बिकम यू नो लाइक यू जस्ट स्विच फ्रॉम दिस टू दैट. There are two words, use and overuse. Use is always better than overuse. बिकॉज ओवर यूज करेंगे तो तुमको क्या, यू गेट दैट एडिक्शन, चलो यार कुछ बनाना है, ये लो टैब लो बनाओ, विच इज नॉट राइट. तुमको यूज इट इन मॉडरेशन. नोबडी इज पुशिंग यू कि नहीं तुम 0 यूज करो, उसका यूज करो बट मॉडरेशन, कीप इट लिमिटेड. Nice. चलेगा. Well, talk about documentaries, movies, and shows that relate to social media. There's also another show that we talked about was Snowden, Yeah. right? So again, I would want you to elaborate a little bit on Snowden as well, since you're on a roll. So go ahead. See, the thing is, Snowden has been made in a way कि उसने कुछ cruel truths दिखाए हैं. ठीक है, जो सोशल मीडिया के बेस्ड हो या तुम्हारा डेटा प्रिवेसी के रिगार्डिंग हो. सो देयर वाज अ सीन इन द मूवी वेयरइन यू विल सी कि द हीरो स्नोडेन जो है ही गोज इनटू अ सर्वर रूम, ठीक है, वेयरइन ही टेल्स कि ये बंदे का अकाउंट है. द पर्सन हु इज देयर, द कोडिंग वाला बंदा है जो एक्सप्लोर करता है, उसको सिर्फ उसने नाम बोला. दैट पर्सन ने उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल दिया उसमें. बिकॉज व्हाट हैपेंस, तुम्हारा प्राइवेसी हिट हो गया उधर. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, जिनको नहीं पता चलना चाहिए उनको पता चलता है तुम्हारी चीजें. इन अ वे यू ऑलवेज नो डेटा कैन बी मिसयूज्ड लाइक हेल, द राइट वर्ड फॉर इट. एंड डेटा आज के जमाने में इतना सस्ता हो गया है ना कि तुमको सिर्फ तुमने समझो गिव अ सर्टेन अमाउंट और तुमको डेटा का डेटा उठा के दे देता है. छोटे से छोटे डेटा के बारे में भी बात करें, लाइक इवन द स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट्स, इवन योर ईमेल एड्रेस या फिर आपका नंबर या फिर आपका लेट्स से just the fact that how many apps you have on your phone, like बहुत सारी चीज़ें ना, it just shows how you behave in a certain way. What are your actual likes, dislikes, what are your behavioral patterns, and वो pattern से ही a lot of people can influence you in so many directions. Like इतने बड़े बड़े corporations जो हैं, जो कि literally आपसे सिर्फ एक सर्वे मांगते हैं कि सर आप बस अपना मोबाइल नंबर भेज दो, हम आपको बस नोटिफिकेशन भेजेंगे. But the moment you do that, there is that data points that are already out there. उसकी वजह से majority of the time, and again बहुत बड़े corporations में they circulate data points, इधर से उधर जाते ही जाते हैं. वो हमने भी देखा अपनी जॉब में. नहीं, अभी तुम देख ही लो ना, अभी नॉर्मल केसेस में फिल सी ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहा, कोई भी बैंक हो, कोई भी हो, सो पहले व्हेन दे फिल आउट अ फॉर्म तुम्हारा नाम वगैरह उसमें रहता है कि नो कॉल्स वगैरह उसमें आने का. बट व्हेन यू गो टू ओपन दी, तुम्हारा ऑनलाइन जो सर्वर आता है उसका, तो ऐप जो आता है उसमें तुमको एक्सेस देना पड़ता है. हाँ, तो नॉनसेंसिकल होगा ना, तुम पहले ही पूछ लो ना, फिर तुमको डेटा चाहिए. Right. Again, even if people say that अरे वो तो ईमेल एड्रेस ही है, नाम ही है, सिर्फ ये बेसिक चीज़ें ही है,
उन सब से ना ये आपका एक बिहेवियरल पैटर्न है जो समझ में आता है लोगों को, विच अलाउज द बिग कॉर्पोरेशंस टू fund the right areas and also drive a lot of the public to certain degrees and make you vulnerable to a point where they know कि अच्छा इसने ये ऐसा ऐसा बिहेव करता है, ये ऐसे ऐसे इसके ऑप्शंस है, तो ही विल बी ससेप्टेबल टू गो देयर, यू नो. तो उसके नोटिफिकेशन आने लगता है आपको. बहुत बार मेरे लिटरली इसमें भी हुआ है कि मैं लिटरली सिर्फ गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे को कोई प्लास्टिक की कोई ऐसी टॉय वाली गन चाहिए, ठीक है, उस पर किया, थोड़े टाइम के बाद अगर दूसरा ऐप खोला मैंने, मेरे को उसी के नोटिफिकेशन आने, उसी के एड्स आने लगते हैं, यू नो. सो ऑब्वियसली देयर इज डेटा बीइंग ड्रिवन फ्रॉम कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन. एंड उसमें क्या होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से टॉक अबाउट मेटा, व्हाट्सएप उनके पास है, फेसबुक उनके पास है, इंस्टाग्राम उनके पास है. सो किधर से भी जाओ, जाना एक ही तरफ है ठीक है, पहुंचोगे आप एक ही जगह पे. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिकम्स इवन मोर कि नाउ वन कॉर्पोरेशन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर. अब उसकी वजह से आप व्हाट्सएप पे कुछ टाइप करोगे कि यार मेरे को बुखार है, मम्मी पापा को मैसेज किया, मम्मी यार आज बुखार लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, आपने लिटरली उसके बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम खोला, आपको दवाइयों के नोटिफिकेशन आने लगे. तो उतनी पावर एक बंदे को देनी चाहिए कि नहीं, या एक कॉर्पोरेशन को देनी चाहिए कि नहीं, यू नो. इट बिकम्स a bigger ethical question where as normal human beings our job is to figure out कि हम लोग ज़्यादा एडिक्ट नहीं हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से, बिकॉज हमेशा हर एक नई जनरेशन के साथ ना कुछ नया आता रहता है. फॉर अस इट वाज टेक्नोलॉजी, लाइक वी हैव एज आई विल सी ना एवरी जनरेशन जो है ना, एवरी जनरेशन दैट कम्स इज समझो तुम यूर ऑन लेवल 1, तो जो तुम्हारे बाद का जनरेशन आता है लेवल 4 लेवल 5 आता है डायरेक्ट, 2 3 इज गायब. बिकॉज वो क्या वो लोग जो एटमॉस्फेयर में है, सो वो उनको ऑटोमेटिकली पुश करते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा डेवलप होके पैदा ही ज्यादा डेवलप होके होते. अभी रिसेंट बज विल सी जेन अल्फा देख लो ना तुम अभी का. जेन अल्फा नहीं अभी है ना, अभी क्या बोल सकते हैं जनरेशंस ना, अभी हम कैसे वी आर जेन ज़ी वाले डू नॉट इंक्लूड मी जेन ज़ी, मैं का नहीं मानना जेन ज़ी नहीं, बट इन दी ओवरव्यू वाला सेंस है जनरल में हम लोग नहीं आई गेट व्हाट यू मीन. अभी जेन अल्फा क्या है, जेन अल्फा जो तुम जितने डेवलप थे ना उससे 2-3 लेवल ऊपर ही चलता है उनका सब. Repeating the conversation a little bit from kids from Gen Alpha and Gen Z, like for us again, for our channel, like you know, it's about people who are in their 20s, किस तरीके से, you know, like personal responsibility that we have. So what is something that we can do as people in their 20s to utilize social media properly and also create measures for people who will, like for Gen Alpha who will start to use it. Again 50 चीज़ें उनको भी पता है, मैं नहीं बोल रहा कि उनको कुछ नहीं पता, but the thing is कि we are the generation right now that will eventually take up a lot of important positions in the country, from government to education to business, blah blah blah. So it becomes a necessary topic for us to discuss कि as people who are going to be the decision makers in the near future, how do we become more sensitive to create the conversations ki theek hai, like this is what we can do, this is what we can do. But before we deep dive into that, I wanted to check on one of the points that we sort of didn't get into, data privacy. We talked about बहुत easily, you know, data इधर से उधर हो जाता है. So for me, my question to you would be, what are certain measures that you would say कि भाई अपना डेटा बचाने के लिए ये आपको चीज़ें करनी चाहिए, ये आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए. बाउंस बैक द सेम टू, तुम बताओ. मैं इतने देर से पूरा अच्छे से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया और तुम्हारे सिर्फ दो नो, आप बताओ. ओके, सी देखिए, आई विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन. For me, I think again, जो permissions आप देते हो apps के through, जो भी not only just the permissions that you give, but also your habits of actually
visiting a particular site or downloading a particular app. Like all of those things create a pattern. That pattern is then leveraged by companies to make a pivot in your life कि अच्छा ठीक है, he is susceptible to this, he is susceptible to that, push this, push that, there is high probability that you will get something from this guy or girl, whatever it is. For me, I think as an individual in his 20s and even someone who is late teens, early 20s, the best way for them to break those chains is to keep growing. And I think even if you are revisiting a particular thing again and again, it's important for you to do it from different perspectives. कि अगर मैं, let's say, I don't know, like I'm into some sort of like, what's the word? Like for example, I don't know, like मेरे को एक like buying का बहुत शौक है, कुछ भी खरीदने का बहुत शौक है, right? उस टाइम पे the question becomes, is it coming out of necessity or is it coming out of just for the sake of habit? ठीक है, तो for you to break those things, the best way for you to break those things would be कि अगर मैं एक चीज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो अच्छी लग रही है और मैं एक चीज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो ज़रूरत से भी ज़्यादा ना, like it becomes sort of, again we've talked about addiction, but addiction से भी ज़्यादा ना it's seeped into our system so much कि वो ना like literally आप सुबह भी उठते हो and the first thing that you do is scroll your phone, right? वो इतनी गंदी वाली हैबिट बन गई है कि उस टाइम पे उससे निकलने का भी ना the easiest thing is to replace it with a with a better habit. तो उस टाइम पे अगेन इफ़ यू लाइक पैटर्न्स ब्रेक करना, द बेस्ट थिंग इज़ भाई आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो हमेशा, यू नो. तो अगेन वी हैव टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, जो कि एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक कोड डेवलपर के लिए द वे दैट ही यूजेस हिज इंटरनेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ गाय इन मार्केटिंग और फ्रॉम अ गाय हु इज़ सेलिब्रिटी ऑन अ सोशल मीडिया अकाउंट. तो माई advice to everyone would always be keep learning, keep looking at different ways to inhale your curiosities through social media in many different ways. Spend more time on introspection. नहीं, इंट्रोस्पेक्शन से ज़्यादा ना मेक श्योर कि आपके पैटर्न्स आर नॉट ईजी टू, नहीं दे आर नॉट ईजी टू रीड. तो उस टाइम पे क्या हो जाता है ना कि इट्स एल्गोरिदम भी उस टाइम पे यही करता है कि अच्छा ठीक है, ही इज़ एक्चुअली इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो इसको मैं 50 चीज़ें और पुश करूँगा, यू नो. बट अगेन वी टॉक अबाउट डेटा प्राइवेसी, मैं थोड़ा सा पिवट ले लिया उसमें. बट हाँ, डेटा प्राइवेसी के हिसाब से आई वुड अगेन से भाई अपने परमिशंस थोड़े से ध्यान दो, यू नो. लाइक हमेशा कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो, यू हैव टू लाइक एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ एंड नो कुकीज़. लाइक इतने बड़े वो होते हैं, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहा करो. लाइक इतने ईजिली मत दे दिया करो अपनी परमिशंस. नहीं, मेजरली फर्स्ट थिंग इज हम लोग इग्नोर कर देते हो TNC का पार्ट. टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखे हुए हैं वो तुम सिर्फ एक ओवरव्यू कर लो, दैट विल ऑल्सो हेल्प. पहले तुम पूरा डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, नहीं, जस्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ दिस ऑफ सर्टन थिंग्स. समझो तुम्हारा डेटा वो कितना पिक करने वाला है, डेटा कितना शेयर करेगा, दैट ऑल इफ़ यू गेट एन आइडिया तुम थोड़ा अपने फ़ोन की ऐप्स को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते. सो अगर पर्टिकुलर्स में जाते हैं हम लोग, तो फर्स्ट थिंग इज़ रेस्ट्रिक्ट एक्सेस. भले तुम्हारा कैमरा का हो या माइक का एक्सेस हो या नोटिफिकेशन का एक्सेस हो. सो द मोर यू रेस्ट्रिक्ट उतना तुम्हारा फ़ोन को वो रीड करने को टफ जाता है, विच इन अ वे कीप्स यू लाइक अ सीक्रेट पर्सन. चलो ठीक है, इसने इसका जो भी चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, तो इन अ वे तुम जितना उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे उतना इज़ गुड फॉर यू. बिकॉज क्या है, हम ऐसे बिंदास छोड़ देते सब, वो बिंदास छोड़ने का ऐसे सब लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, बी इट कंपनीज, बी इट योर एप्स, बी इट एनीथिंग. सो डोंट गिव देम लेवरेज कि चलो तुमको हमने ये सब दे दिया, अभी तुमको जो करना है करो.
never do that, because अगर if you'll also see ना, अभी what I will say is मैंने भी बहुत जगह का एक्सेस बंद करके रखा है, कैमरा का, माइक का, नोटिफिकेशंस का, बिकॉज मेरे को ज़रूरत नहीं उसका, क्यों बिना मतलब मैं कैमरा का एक्सेस दूँ या माइक का एक्सेस दूँ जो ऐप्स में यूज़ ही होता नहीं. देर आर सम रैंडम ऐप्स हु आस्क चलो तुम्हारा कैमरा परमिशन दो, तुम्हारा फाइल्स का परमिशन दो, क्यों दो ना, देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू अस. हम कुछ रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना हम लोग खुद को बचा सकते हैं. तो ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू सर्टन ऐप्स की चलो ठीक है हम इतना चीज़ ही सेव करेंगे, उतना रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे. ऑलवेज व्हेन यू टेक अ फोन परमिशंस को कॉन्स्टेंटली रीड करना, एंड दे आर मैनी ऐप्स जिसका तुम परमिशंस जो है वो तुमको बिना बोले एक्टिवेट कर देता है. तो आई वुड से वीकली वंस या मंथली वंस गो टू ऑल परमिशंस एंड सी कौन से ऐप ने तुमको परमिशन नहीं दिया था तो भी इट हैज टेकन एक्सेस उस चीज़ का. सो दैट यू आर मोर अवेयर अबाउट योर फोन्स डेटा बीइंग लीक्ड और रॉब्ड और एनीथिंग लाइक दैट. सो जितना तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ेगा उतना उनको डेटा कम मिलता है पिक करने को, which in a way is beneficial for our generation as well as the coming generations. So keep it secret. It's not जरूरी कि तुम सब डिस्प्ले कर दो. You know, like that also raises a good question, जो कि leads to one of the questions that I wanted to ask you in this podcast as well. कि I have seen a lot of people जो कि अपनी सोशल मीडिया से ना लाइफ बहुत प्राइवेट रखते हैं, लाइक ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई, स्पेसिफिकली ऑनलाइन प्रेजेंस, नॉट ओनली जस्ट सोशल मीडिया बट ऑनलाइन प्रेजेंस इन जनरल बहुत कम रखते हैं. So in your opinion, is there benefits to having a differentiation between your personal life and your online presence? या फिर what are the things that you've seen कि अगर कोई restrict करता है अपनी online presence, like what kind of advantages have you seen? Like, do you know people who are actually there like very secretive about their personal life and they don't want to do a lot of they don't want to have a bigger online presence? See, the thing is social media presence जो है वो limited रखो, no doubt. नहीं, I'm talking about like just online presence, social media से भी ज़्यादा. So online presence as a whole you should keep, not for everything but certain things में online presence जरूरी है, because it should not feel कि अरे ये तो क्या गायब ही हो गया इधर से. It should not be that way. ठीक है, you restrict, definitely restrict करो, एंड ऑनलाइन प्रेजेंस का एडवांटेजेस तो वैसे भी है, बट स्टिल वो एडवांटेजेस शुड नॉट ओवर पावर तुम्हारे डिसएडवांटेजेस जो है. सो मेक श्योर कि तुम्हारा जो एडवांटेजेस है वो तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है. ठीक है, तो दैट कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑनलाइन प्रेजेंस में भी समझो तुम कोई ऐप यूज़ कर रहे हो जहाँ विच यू आर ट्राइंग टू लेवरेज, समझो तुम्हारा नॉलेज तुमको लेवरेज करना है, डेफिनेटली वहाँ ऑनलाइन प्रेजेंस रहना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर स्टडिंग समथिंग न्यू. सो इट विल ऑलवेज गिव यू मोर सजेशंस कि चलो तुम ये डेवलप कर रहे हो, चलो ये तुम्हारे कोर्स के और कंटेंट आ गए उसमें. सो इन अ वे वो ऑनलाइन प्रेजेंस रखना ज़रूरी है. बट अगर वी फोकस ऑन टू सोशल मीडिया, डेफिनेटली उसमें तो प्रेजेंस रेस्ट्रिक्ट करना इज मस्ट, बिकॉज जितना रेस्ट्रिक्ट करेगा उतना अच्छा ही है तुम लोग के लिए. एंड सी व्हाट वी सी इसकी चलो बहुत लोग अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं. एक्टर्स को तो रखना ही पड़ता है बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज, उनको अपडेट्स देना पड़ता है. Not necessarily, but yes, definitely they are Not a tough life. tough life है ना, उनको मीडिया के सामने रहना पड़ता है. एंड अगर तुम अगर यू थिंक उनके साइड से देखेंगे ना तो उनको ऐसा बहुत शौक नहीं रहता है कि चलो मीडिया प्रेजेंस करें हम. येस, देर आर सर्टन सेट ऑफ एक्टर्स जिनको वो एक लाइमलाइट पसंद है, बट बहुत लोग ऐसे भी जिनको नहीं पसंद है. नहीं, बट अगर उनके हिसाब से ही देखा जाए तो लाइक इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक कि आप मूवी के लिए तो एक्टिंग कर ही रहे हो, बट यू आर ऑल्सो एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा नाउ फुल्ली, कि सोशल मीडिया के सामने भी एक नहीं. अभी व्हाट यू विल सी ना, अभी रिसेंटली करीना कपूर डिडंट हैव एनी इंस्टाग्राम अकाउंट एज सच. बहुत सारे सेलिब्रिटीज बनी. सो अभी रिसेंटली शी हैज स्टार्टेड. बहुत सारे एक्टर्स हैव एक्चुअली सेड नो टू हैविंग सोशल मीडिया अकाउंट्स बिकॉज दे सेड कि लाइक डूड मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं मूवी के लिए एक्ट करूंगा एंड उसके साथ उसकी थोड़ी सी प्रमोशन करूंगा, सोशल मीडिया वगैरह की जरूरत है ही नहीं. बट आजकल के ज़माने में व्हेन सोशल मीडिया हैज़ बिकम सच अ बिग थिंग कि लोग अगर आपकी एक पर्सनालिटी बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है, तो उसी तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है. के बेसिस पे ही लोग देखने आएंगे आपकी मूवीज. डजंट मैटर कि आप अच्छे हो या गंदे हो एक्टर. तो या आई मीन अगेन ऑल दोज थिंग्स आर रियली समथिंग दैट पीपल शुड नहीं. सी ना, अभी देयर आर मेनी एक्टर्स जो मतलब स्टार्टिंग में कुछ मूवीज के बाद में दे लिटरली क्लोज्ड ऑफ एवरीथिंग.
डिनो मोरिया देख लो, आफ्ताब शिवदास ने देख लो, ये लोग ने थोड़ी इतना डिस्प्ले किया, वो लोग थे अपना लाइफ में सुखी जी, क्यों उनको दिखाने क्या दूसरे को, विच इज अ गुड थिंग ना, ठीक है तुम्हारा एक सर्टन लेवल ऑफ प्राइवेसी तुम मेंटेन करो ना, नोबडी इज पुशिंग यू ऑन दैट कि नहीं तुम रखो उस अकाउंट, एंड आफ्टर ऑल तुम तुम्हारे डिसीजंस के जिम्मेदार हो, इज ऑलवेज गुड। मैं तो भाई एक ही चीज़ बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे आओ, वर्सटाइल वाइब पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, जरूरत नहीं है बाकी सब करने का ना मैन। बट या अगेन अनदर वीक अनदर पॉडकास्ट, अच्छा पॉडकास्ट था, वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली हमने रिसेंट जनरेशन का जो बहुत ये एडिक्शन है टुवर्ड्स सोशल मीडिया, उसके ऊपर भी पुट थ्रू सम लाइट। आई थिंक लाइक अगेन यू नो लाइक इट्स नॉट अ न्यूअर टॉपिक, यू नो बहुत सारे लोग इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई थिंक what our podcast is meant to be is a conversation starter, right? कि हम लोगों को whatever that's major in a life of someone who is in their 20s, हम लोग को वो उस पर थोड़ी सी लाइट शेड करनी है। एंड अगेन इट्स वेरी पॉपुलर टॉपिक, सोशल मीडिया एंड एडिक्शन एंड ऑल दैट। तो again if you know like you saw this podcast and got a newer perspective, या फिर if you have certain things that we didn't talk about, then please नीचे comments में लिखिए, we'll surely go through them and then you know surely and we'll be more than happy to get your views. Yeah, slowly and surely you know we'll try to incorporate that in our podcasts, and you know this is a great place for us to build a community. तो उसके लिए you know like please comment करो नीचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then of course as I said like करो, subscribe करो, इंस्टा पे जाओ, इंस्टा पे फॉलो करो। 97% of you have not subscribed, मैं बार बार कर रहा हूँ, emphasis दे रहा हूँ इस पर, because please अगर अच्छा लग रहा है तो जाके सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। Again another week man, another topic that I think was very crucial for us to talk about, and another successful podcast। कैसा लगा आज का एपिसोड? Nice. I loved it. Nice. हमें तो बात करनी है, क्या करना है। Nice. So with that being said, I hope you guys have a wonderful week ahead, and we will see you next week. Peace.